the welcome address. Thank you so much, Anu ma'am. Today's honorable judges, Rita Gadkari, Pragya Durape, Archana Jha, all HODs, HOIs present here, my team members, Dr. Anu Ukande, Alka Jha, all teachers, participants, my dear students, very good morning to all of you. Kalakriti is an attempt to find out talent related to fine arts from school students of different age groups. Kalakriti is a platform to showcase such hidden talent. It is an attempt to motivate and preserve the talent of sketching and painting. In fact, not only sketching and painting, but it is an attempt to respect all seven fine art disciplines, which are painting, sculpture, architecture, poetry, music, literature, and dance. Student that take combination of art programs or subjects demonstrate improved verbal and reading skills, improved memory, and improved concentration as well. Also, it show greater capacity for higher ordered thinking skills such as analyzing and problem solving approach. Guggenheim Museum shows a similar link between studying arts and increased literacy skills. Art gives meaning to our lives and helps us to understand person within us. It helps to understand our world. It is an essential part of our culture because it allows us to have deeper understanding of our emotions. It increases our self-awareness. It allows us to open new ideas and experiences. With these words, I will like to welcome all three judges of the day, Preeta Gadkari, Pragya Durape, and Archana Jha. Welcome, ma'am. I must appreciate the hard work done by our team members, Dr. Anu Kande and Alka Jha. I congratulate both of them for their hard work. I must congratulate all students who have participated in this competition. Dear students, please remember taking part and putting our best is more important than the results. So congratulations to all of them who have participated. I welcome all the participants of the today's competition and all the students who are present here. So all the best and thank you so much. Thank you, sir. Now, before we invite the judges and announce the winners, let us have a quick look at the top 10 entries of Kalakriti 5. So now, not taking much more time, I invite Mrs. Alka Jha to introduce our jury member, Mrs. Preeta Gadkari. Thank you, Anu ma'am. Preeta Gadkari, an artist and curator working as founder of ArtMate. She worked this group of encourage concealed artistic talent and presently.
She is working as a art coordinator at Acharya Shankar Sanskrit Ekta Nyas in association with MP government, Sanskriti Vibhag, and Utsad Ulladdin Khan Sangeet Kala Academy Bhopal. Work as a coordinator at International Khajuraho Art Mart for Ustad Ulladdin Khan Sangeet Kala Academy Bhopal 2016. She has participated in more than 80 exhibitions and workshops, including international national exhibitions. She received award Excellent Award by Art Society of Panipat and for 50 artist honors by 9th annual art competitions. Welcome, Preeta ma'am. Thank you, welcome ma'am. I now invite Mrs. Preeta Gadkari to please address the gathering. आप सभी को मेरा नमस्कार। सर्वप्रथम मैं आप सभी को मनोपूर्वक आभार व्यक्त करना चाहती हूँ कि आप श्री वैष्णव विद्यापीठ ने और आप सभी ने मुझे इस कार्यक्रम का भाग बनाया। आप सभी के बीच हूँ, इसके लिए मैं मनोपूर्वक आभार व्यक्त करती हूँ। नए नव युवा कलाकारों का काम देखना और सुनना समझना हमेशा एक अलग आपको एनर्जी एक अलग दुनिया में लेके जाता है, क्योंकि वो किसी से इन्फ्लुएंस नहीं होते, बहुत प्योर उनके थॉट्स होते हैं, बहुत सारी चीजें बहुत नई नई सी होती हैं। वो एक उसका अलग ही अनुभव होता है, उसका अलग ही आनंद होता है। वो आनंद हमने कल आपके जो सारे बच्चों के काम देखे और उसमें लिया भी हमने। मैं मानती हूँ कि जैसे बच्चे काम शुरू करते हैं तो कई कलाकारों के मतलब एक होता है कि something is wrong, कुछ गड़बड़ हो रहा है। मैम आपका ऑडियो आ रहा है, आवाज आ रही है ना? हाँ, आवाज आ रही है, बस वीडियो स्टॉप हुआ है। हाँ चलो कोई नहीं। तो मैं ये हमेशा ये मुझे लगता है कि जब कोई भी कलाकार, हम अक्सर देखते हैं कि एक कलाकार की एक अपनी जर्नी होती है, और कलाकार हम कहते हैं कि कला जो उसकी कलाकृति होती है कलाकार की, वो उसके मन के भाव को दर्शाती है ना। हम जब काम देखते हैं उनका तो हम बता सकते हैं कि वो किस मन भावना से बनी होगी, उस मानसिकता क्या होगी उस कलाकार की, उसके विचार क्या होंगे, एक अंदाज आ जाता है। तो ये जब हम काम मैं पढ़ती हूँ और लोगों के इंटरव्यूज देखती हूँ, उनके बारे में जानती हूँ, और जो अनुभव मेरा अपना है कि मैं सोचती हूँ कि कलाकार कलाकृति जब रचना करता है, चाहे वो किसी भी चाहे वो आर्किटेक्ट हो, चाहे वो फैशन डिजाइनर हो, चाहे वो पेंटर हो, स्कल्पटर हो, कोई भी हो जो रचनात्मक काम से जुड़ा हुआ है, वो व्यक्ति जब काम करता है, वो जब उसका आईना होती है, उसके काम उसकी रचना उसका आईना होती है, तो उसको बहुत कॉन्शियस होना चाहिए अपने काम के लिए, और अपने मतलब कह सकते हैं कि बहुत संजीदा होना चाहिए, बहुत सेंसिटिव होना चाहिए, है ना। और उसके लिए बहुत जरूरी है कि वो उसके बारे में सोचे, और वो जब काम करे तो वो एक ध्यान की तरह काम करे, है ना। मेरा विषय भी वही है आज आप सबसे बात करने का, कलाकार और योग साधना का एक अंतर संबंध होता है वही। जब हम देखते हैं कि मैंने कई बड़े कलाकारों को सुना है जो थिएटर पर्सन है, वो कहते हैं कि जब हम अपना कार्यक्रम प्रस्तुत करने जाते हैं तो हम कुछ समय के लिए उस स्टेज पर अकेले होते हैं, हम उस स्टेज से संवाद करते हैं, हम अपने वर्क प्लेस से संवाद करते हैं, तब हम उससे मतलब एकाकार होकर फिर हम अपने काम को एक वो जो हम उनमें जो देखते हैं ना कि वो महान कलाकार, वो जो एक महान कृति निर्माण हुई, वो तब हो पाती है जब आप उससे एकाकार होते हैं, सारी दुनिया से कट ऑफ होके। तो वो जो ऑन ऑफ का हम कहते हैं कि अपने आप के अंदर अपने अंदर बाहर के चीजों को ऑफ करके अपने अंदर के चीज को ऑन करना, वो बात है इसमें। सबसे पहले अगर हम इसी तरह हम सिंगर्स को भी, जो बड़े बड़े क्लासिकल सिंगर्स हैं, जो डांसर्स हैं, वो भी यही कहती है कि हम उसे साधना की तरह देखते हैं। हम जब काम शुरू करते हैं या हम रियाज करते हैं तो कुछ समय के लिए हम बाहर की दुनिया से पहले खुद को अलग कर लेते हैं,
कुछ समय हम अकेले रहते हैं, और फिर जब हम पूरी तरीके से मतलब सोशल मीडिया और जो आजकल होता है ना कि काम करते हुए स्क्रॉल भी कर रहे हैं हम, और बहुत सारी चीजें इंटरप्ट भी कर रही हैं, तो वो चीजें हमारे काम पे भी इफेक्ट करती है। तो उस वक्त हमें पहले खुद को अकेले रखना है, अपने काम के बारे में सोचना है, अपने वर्क प्लेस के साथ एकाकार होना है, और फिर अपने काम को करना है। तो फिर डेफिनेटली ये सारी चीज जो आप में एक होता है कि जब हम अपने आप से जुड़ेंगे तभी हम अपनी कला को से जुड़ पाएंगे, एक अच्छी कलाकृति निर्माण कर पाएंगे। बहुत सारी चीजें अगर बाहर की चीजें हमें डिस्टर्ब करती रहती हैं, अगर हम नहीं हो करते ऐसे ही प्रोसेस, तो फिर उसका इफेक्ट भी हमारे काम पे दिखता है, हमारे कलाकृतियों पे दिखता है, हमारी रचना पर दिखता है। तो बहुत जरूरी है कि ये इन और आउट हमें जो अंदर और बाहर की प्रक्रिया है इसको ऑफ ऑन करने का प्रोसेस करना बहुत जरूरी है। तो ये मुझे लगता है कि कलाकार की जो शुरुआत है, जो अभी सुनने वाले मैक्सिमम बच्चे हैं, तो वो अगर ये करें तो वो अपने मन को साध पाएंगे, और मन को साधेंगे तभी उनकी रचना पे भी उसका परिणाम निश्चित ही सुंदर होगा। थैंक यू। कुछ और कहूँ? औरों को भी मौका देना है ना? हेलो। थैंक यू थैंक यू। थैंक यू प्रीता मैम। आप हमेशा इंस्पायर करती हैं हमें और मोटिवेट करती हैं, कई सालों का साथ है और आपसे बहुत कुछ सीखा है। अब मैं नाउ आई इनवाइट मिसेस अलका झा टू प्लीज इंट्रोड्यूस आवर जूरी मेंबर श्रीमती प्रज्ञा दुराफे। Thank you, Anu ma'am. This is Pradnya Durafe, an artist, and she has experienced 18 years and art educator. Presently, she is working with Shishu Kunj International School. She conduct camp for traditional art in different schools. She participated in more than 60 exhibitions, including national and international exhibitions, awards, उस्तारुप शिक्षक सम्मान 2015, मेरिट अवार्ड कर्नाटका ललित कला अकेडमी 2015, एक्सीलेंस अवार्ड आर्ट सोसाइटी ऑफ पानीपत। थैंक यू। I now invite Mrs. Pradnya Durafe to please speak to the audience. नमस्कार। यहाँ उपस्थित सभी गणमान्य और सभी विद्यार्थियों को मेरी तरफ से नमस्कार, और मैं आभार व्यक्त करती हूँ आप लोगों का जिन्होंने हम लोगों को यहाँ इनवाइट किया और बच्चों का एक काम देखने का एक हमको और अवसर मिला। यहाँ बच्चों का काम देखा, बहुत प्रसन्नता हुई, बहुत अच्छा काम है बच्चों का। और अभी जिस तरह से प्रीता ने बताया कि हमको बच्चों को या एक कलाकार को साधना किस तरह से करनी चाहिए, तो आज मेरा विषय भी है कि आज की जो आधुनिक तकनीक है वो और आज के बच्चे, तो उनमें एक थोड़ा सा तालमेल बिठाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज जो आधुनिक तकनीक है वो बहुत अच्छी है, बहुत अच्छे से बच्चे काम कर रहे हैं, उसका उपयोग भी बहुत अच्छे से किया जाता है, पर कहीं कहीं इसी आधुनिक तकनीक के साथ बच्चे अपना रास्ता भी भटक रहे हैं, क्योंकि बच्चे ये देखते हैं कि हम आसानी से कहाँ से क्या बना लेंगे, आसानी से हमको क्या मिल जाएगा, हमारा वर्क अच्छा कैसे दिख जाएगा, उसके लिए वो आसान तरीके खोजने की कोशिश करते हैं। तो वो तरीका ठीक भी है कि आप अपने आप को आज की जनरेशन के साथ रख सकते हैं, पर उसके साथ ये बहुत ज़रूरी है कि अपने आप को सही तरीके से अपने आप को पहचानना। जब हम अपनी कला की साधना करते हैं वो एक रियाज है, हमें अपनी पहचान अपनी कला से बनती है ना। एक आर्टिस्ट होता है, उस आर्टिस्ट का सिग्नेचर स्टाइल होता है, तो आर्टिस्ट सामने नहीं भी होगा तो उसकी पेंटिंग देख के कोई भी कह सकता है कि ये इस आर्टिस्ट की पेंटिंग है। ये तभी होता है जब आर्टिस्ट अपना काम, अपनी रचना पूरी तरह से अपने रियाज के साथ अपने भावों को व्यक्त करता है, अपनी चीज़ों को व्यक्त करता है। तो आप अभी सब छोटे बच्चे हैं, सब अभी इसमें
शुरुआत कर रहे हैं, तो आप लोगों से सबसे यही हम लोग चाहेंगे कि आप अपनी स्टाइल खुद डेवलप करें, अपने आप को डेवलप करें। इसके लिए रियाज बहुत ज़रूरी है। खूब स्केचिंग करें, खूब प्रैक्टिस करें। इसके लिए एक छोटा सा उदाहरण मैं देती हूँ। जब हम लोग पढ़ते थे या जब शिक्षा हम इस फील्ड में जब शिक्षित हो रहे थे, तो एक छोटा सा विषय हुआ करता था स्केचिंग, जिसके लिए हम लोगों के टीचर्स हमको कहते थे कि आज का होमवर्क है 100 स्केच करके लाना है। तो हम वो स्केच के लिए भटकते थे, कभी रेलवे स्टेशन जा रहे तो कभी फ्रूट मार्केट जा रहे, जागे जगह जाते थे कि जहाँ हमको लोग ज्यादा दिखे, हम उनको बराबर स्केच कर पाए, ताकि वो हमारी खुद की स्टाइल डेवलप होगी। हम उस फिगर को कैसे देख रहे हैं, हमारी स्टाइल डेवलप होगी। तो आज जैसे मीडिया का आप यूज कर रहे हैं, तो उसी मीडिया को आप यूज कर सकते हैं स्केचिंग के लिए। अगर हम बाहर नहीं जा सकते हैं, तो आप कोई भी चीज यहाँ पे देख के उसको अपने फॉर्म में स्केच कर सकते हैं। तो बेटा प्रैक्टिस करना है, और कोई भी चीज अगर आप कॉपी भी कर रहे हो, तो उसमें आपकी खुद की आत्मा डालनी है। अगर आपने एक फिगर देखा है, तो वो फिगर का बैकग्राउंड आपको खुद को तैयार करना है, कि वो फिगर अगर आपको पिक्चर में दिख रहा है कि ये फिगर यहाँ बैठा है, पर आप उसको चांद पे भी ले जा सकते हो, आप उसको समुद्र के अंदर भी ले जा सकते हो, पर उसमें आपकी खुद की ओरिजिनलिटी होनी चाहिए। तो रियाज करने के लिए आज बहुत माध्यम खुले हैं। बस आपको सोचना है कि आपको कहाँ उड़ान भरनी है और अपने आप को कहाँ, किस क्षितिज तक ले जाना है। थैंक यू सो मच। थैंक यू प्रज्ञा जी, वेरी इंस्पायरिंग, एंड आई एम श्योर अब बच्चे प्रैक्टिस करेंगे जिस तरह आपने गाइड किया है। I now invite Mrs. Alka Jha to introduce our jury member, Mrs. Archana Jha. Thank you, Anu ma'am. Mrs. Archana Jha, an artist from Bihar, she did Sanskrit honors. Sorry, she did Sanskrit honor and master in Sanskrit from Ranchi University. Also, she did bachelor and masters in fine arts from Government College, Indore. She has participated in many groups and solo shows and various parts of India. She also participated her works in Delhi, Lalit Kala Academy, Bangalore, Hyderabad, Chandigarh, Bhopal, Gwalior, Lucknow, and many in Indore. Her painting selected for Khajuraho State Show. Her painting were selected for Khajuraho State Show for 3 times. Was nominated. She was awarded in Women's Exhibition Chandigarh and won many prizes in academic competition. Over to Anu ma'am. Thank you, Alka ma'am. I now invite Mrs. Archana Jha to please address the audience. नमस्कार सभी को, धन्यवाद बहुत बहुत आप सभी का कि आप लोगों ने मुझे मौका दिया है, एक प्लेटफॉर्म दिया है। आपके वैष्णव कॉलेज के सभी विद्यार्थी और आप सभी टीचर्स और डायरेक्टर्स हैं, सभी का बहुत बहुत आभार। इस काम बच्चों के देख के बहुत बहुत दिनों के बाद देखने को एक्चुअली मिला, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से हम बच्चों के काम देख नहीं पा रहे थे। तो ये देख के भी अच्छा लगा कि चलो बच्चों ने लॉकडाउन को भी त्यागा नहीं, काम को अपने जारी रखा है। और कला के बारे में तो मैं इतना ही कहूंगी कि मैं अभी खुशकिस्मत हूँ कि मैं आज के जनरेशन के साथ काम कर रही हूँ, फील्ड वर्क कर रही हूँ, उनके साथ बहुत सारा काम करने को मौका मिल रहा है। तो मैं अभी उनसे बात कर पा रही हूँ, और उनकी एक जिज्ञासा बहुत ज्यादा होती है कि हमारा काम कैसे बिकेगा, हमारा काम कैसे बढ़ेगा, हम फेमस कैसे होंगे। तो मेरा उस चीज को लेके है कि किसी भी चीज को पाने के लिए, जैसे कहते हैं ना कि कला और कलाकार दोनों को अगर बढ़ना है, तो दोनों को ही एक साथ एक दूसरे का साथ देना पड़ता है, और तभी कला निखरती है। और जैसा कि प्रज्ञा दी ने बोला, इसके लिए बहुत 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 ज्यादा प्रैक्टिस करनी होती है। प्रैक्टिस से भागना नहीं है, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आपका काम निखरेगा। और दूसरा इसका सबसे प्लस पॉइंट होता है कि आप किसी न किसी संकाय से या किसी संस्थान से जुड़े, क्योंकि आप बोलते हैं ना कि अरे मैंने तो इंटरनेट से सब कुछ सीख लिया है। ज्यादातर बच्चे यही बोलते हैं मुझे कि यार आज सब कुछ अवेलेबल है, सब कुछ देख लिया। लेकिन जो एक देखना बोलते हैं, जैसे आप किसी चीज की आप किसी संस्थान से जुड़े हैं, वहाँ के जो पुराने स्टूडेंट्स हैं,
वहां से जो बहुत बड़े बड़े आर्टिस्ट निकले हैं, उनके काम को जब आप लाइव देखते हैं तो आपको उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और वो सीख आपके अपने काम को नया बनाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है। आप पुराने बड़े स्टूडेंट्स जो होते हैं, जो पास आउट्स होते हैं, वो कॉलेज वगैरह में विजिट करते हैं, वो आपको गाइड करते हैं। वो फिर बोलोगे कि अरे वो क्या बताएंगे हमको, हमको तो ठीक है, हम तो कर लेते हैं। लेकिन आप ठीक है उनकी कला नहीं सीखोगे, लेकिन वो टेक्निक सिखाएंगे आपको, आपको तरीके बताएंगे कि कैसे क्या किया जाता। फिर आप उससे नया कुछ सीख सकते हो, आप उससे कुछ अलग बना सकते हो। और धीरे धीरे यही करते करते ही आप एक अलग अपना एक स्टाइल डेवलप कर लोगे, और उसी से फिर आप आगे बढ़ पाओगे, जिससे आपको लगेगा कि हाँ ठीक है, ये अब मेरी पहचान बन गई। और सबसे जरूरी ये होता है कि हम अपने काम को किसी को दिखाते हैं, तो हमारे अंदर अगर हमको अगर वो कुछ गाइड करते हैं, तो वो ये नहीं होता कि वो मिस्टेक्स निकालते हैं, वो हमको एक रास्ता दिखाते हैं। तो आप अगर पॉजिटिव लो, किसी से मिलो, किसी को अपने काम दिखाओ, उनके काम देखो, तो जरूरी नहीं है कि उसको देख के उसको बनाओ। जरूरी ये होता है कि आप उसमें से तकनीक सीखो, आप उसका तरीका सीखो कि इसमें कैसे डेवलपमेंट कैसे की जाती है। और इस तरह से आपका अपना खुद का काम डेवलप हो जाएगा, और खुद ही जब आप आगे बढ़ोगे आपका काम आगे बढ़ेगा, ऑब्वियस है कि आप भी आगे बढ़ोगे। तो बहुत जरूरी होता है मिलना, कहीं जाना, लोगों का काम देखना और उनसे बातें करना। ये आज की जनरेशन नहीं कर रही है, ये करना बहुत जरूरी है। थैंक यू सो मच। Thank you, Archana ji. Now with all the judges, इन लोगों के जो भी inspirational words थे, जो भी guidance थी, I'm sure participants इसको ध्यान में रखेंगे and this will help improve their work further. It's now time to announce the winners. I'm sure सब लोग wait कर रहे हैं कि कौन जीता है। तो हमारे judges ने बहुत time लेके बहुत सारे aspects को analyze करके they have decided one winner in each category. So the winner in the age group of 16 to 18 years is the entry from Arshid Khan, and the winner in age group of 19 to 22 years is an entry from Diksha Chaudhary. So I personally congratulate both the winners. Many congratulations. Although बहुत सारे बच्चों ने बहुत अच्छा काम किया था, still the judges had to decide one winner. So congratulations again to both the winners. Now, if the winners would like to say something, I can see Diksha Chaudhary in the participants. Diksha, can you unmute and switch on your camera and say something? What inspired you, why you made what you made, and how you feel? Diksha Chaudhary? Yes, ma'am. Good morning, ma'am. Good morning, sir. And thank you. मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मैं बता नहीं पा रही हूँ, बहुत खुशी हो रही है वो मुझे। मैम शब्द ही नहीं निकल रहा मेरे मुंह से, मुझे इतनी खुशी हो रही है। शेयर करो, आपने क्या सोचा, क्या सोच के आपने बनाया पोस्टर, कहाँ से इंस्पिरेशन? मैम मैंने कुछ नहीं, बस ऐसे माइंड में आया, जैसे हेल्थ के लिए क्या इम्पोर्टेंट होता है, ग्रीन सब्जी फ्रूट्स यही इम्पोर्टेंट होता है, और वर्कआउट एक्सरसाइज यही मैंने बताया है मेरी उसमें पोस्टर में। मैं भी यही करती हूँ रोज, तो मैंने वही बताया जो मैं करती हूँ। वेरी गुड। और आपने जो विजुअली रिप्रेजेंट किया बहुत अच्छा, नीट वर्क था, रेलिवेंट टू द टॉपिक था, ये सारे एस्पेक्ट माइंड में रख के जजेस ने डिसाइड किया है। तो वेरी गुड एंड कैरी ऑन, मेक इवन मोर बेटर आर्ट वर्क एंड ऑल द बेस्ट, सी यू इन नेक्स्ट कलाकृति. Now with this, we've come to the end of the session. I now invite Mrs. Alka Jha to propose the words of thanks. Thank you, Anuma. Good morning, one and all present here. I feel immense pleasure to extend my gratitude on behalf of Sri Vaishnav Institute of Fine Arts and to all those
who have been directly and indirectly associated with Kalakriti 2021. First of all, I would like to thank our judges, artist Mrs. Preeta Gadkari, artist Mrs. Pradnya Durafe, and artist Shrimati Archana Jha for accepting our invitation, making this event successful. I would like to thank Dr. Upinder Dhar sir, our Honorable Vice Chancellor, for this guidance. I am also thankful to Architect Shri Vishal Yardi sir, Coordinator Shri Vaishno Institute of Fine Arts and Director Shri Vaishno Institute of Architecture Indore. I am thankful to Dr. Anu Pandey for coordinating Kalakriti 2021. I am thankful to all my colleagues and participants for making this competition successful. Thank you all. Have a nice day. Thank you so much all. Thank you so much. Thank you. Thank you, Alka ma'am. With this, we conclude Kalakriti 5, and we hope that next Kalakriti next year we'll see all of you and many more of your friends and great artwork. And I hope you will keep on making more creative artwork in the future as well. So happy creativity, happy painting, and see you next year. Thank you. Bye. Thank you all judges. Thank you. Congratulations. Thank you. Winners. Thank you so much. Thank you, judges. Thank you so much. Thank you so much. Bye.